صفحہ نمبر 144، جو 40 یا کچھ زیادہ سال بعد میں آئے، جنہوں نے بتایا کہ مقدس لوکا، پولس رسول اور ان کے مشرقی بحر روم کے 9 مریدوں کا کیا بنا، جن کے نام کا ذکر پولس کے خطوط میں فخر سے ملتا ہے۔ بات کہ یہ سب مصنفین اتفاق کرتے ہیں کہ پولس رسول کو غالباً نیرو کی ازارثانی میں روم سے باہر شہید کیا گیا۔ ان کے لیے 8واں باب پڑھیے۔ تاہم پولس رسول کی شخصیت کا پتہ نسبتاً مقدس لوکا کی تحریر کے ان کے اپنے خطوط میں زیادہ ملتا ہے۔ ان خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسیحی زندگی کی دقیقیت سے بہت گہرے طور پر واقف تھے۔ ان کا سبھاؤ گلتیا کے لوگوں کی غلطی سے بڑا صابرانہ تھا، جبکہ اس کے خلاف کرنتھس کے لوگوں سے ان کا برتاؤ توجیہاتی تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب انہوں نے پرشہوت شہر کرنتھس میں نئے مریدوں کے لیے جنسی تعلقات پہ اصول بھی وضع کیے۔ ایک اور موقع پر انہوں نے روم کے مسیحیوں کو یقین دلایا کہ ایک آدمی کی حکومت دوسرے کے لیے لائسنس ہو سکتی ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خداوند مسیح کے لیے کرتے ہیں۔ اس سے بھی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو شخص اپنی مثال دینے سے نہیں چوکتا، وہ اسی خلوص سے یہ بھی لکھتا ہے، میرا اپنا رویہ مجھے چکرا دیتا ہے، کیونکہ جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ کر جاتا ہوں۔ رومیو 7:15۔ پولس رسول کے خطوط میں جب ایسا تضاد نظر آئے تو جدید زمانہ کے رد عمل میں اور بہت تضادات نکل پڑے۔ لبرل فلاسفر جان سٹارٹ مل لکھتے ہیں، میں پولس رسول کو مسیحیت کو خراب کرنے والا پہلا شخص گردانتا ہوں، جبکہ ماہر الہیات پال تلک کا یہ مشاہدہ ہے، آدمی جو خدا کی خواہش کرتا ہے وہ اسے پا نہیں سکتا، اور جو آدمی اپنی زندگی میں نئی غیر فانیت کے معنی کی تگ و دو کرتا ہے وہ دریافت نہیں کر سکتا۔ ایسے آدمی سے پولس رسول بات کرتے ہیں۔ منفی سوچ کا جرمن فلاسفر فریڈرک نیشے یوں کہتا ہے، ایک دیوتا جو ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، ایمان کے وسیلے نجات، موت کے بعد قیامت یعنی زندہ ہونا، حقیقی مسیحی کے خلاف ہیں، جن کے لیے تباہ کن سر پھرے شخص پولس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ بات کا ایک جرمن عالم اوڈولف دیسمین یوں لیتا ہے، ایک ہی وقت میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو شدید ترین نفرت کرتا ہو یا شدید ترین محبت کرتا ہو۔ مسیح نے جس بات کا پرچار کیا وہ انسانی جان کی نئی پیداوار تھی۔ اوائل برطانوی سائنسی افسانہ نگار H.G. ویلز لکھتے ہیں، لیکن جو پولس نے پرچار کیا وہ پروہتوں اور قربان گاہوں اور فدیہ کے لیے خون بہانا کا قدیم مذہب تھا۔ ایک اور آدمی ایسی ہی پریشانی میں کہتا ہے، مسیح ایک آرین تھا، لیکن پولس نے ان کی تعلیم کو زیر زمین کو متحرک کرنے اور اولین بولشوازم کو منتظم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس آدمی کا نام اڈولف ہٹلر تھا۔ ناول نگار سیموئل بٹلر لکھتا ہے، مقدس پولس نے یقیناً تمباکو کو مسترد کیا ہوگا۔ ایپسکوپلین بشپ جیمز پائک نے دعویٰ کیا کہ مقدس پولس رسول جنسی تعلقات کے متعلق غلط تھے۔ بدعتی مارسین تک کوئی بھی پولس رسول کو نہ سمجھ سکا اور اس نے انہیں غلط سمجھا۔ عظیم نقاد بائبل اوڈولف وان ہارنک نے لکھا، صفحہ نمبر 145، اس طرح 19ویں اور 20ویں صدی کے نقادوں نے سب سے زیادہ پولس رسول کے خلاف متضاد بیانات دیے، اور یہ تضادات تصور اور حقائق کے درمیان تھے۔ زمانہ جدیدیت میں پولس رسول کو مسیحی عقیدے کا معتبر ترین ستون مانا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے یسوع مسیح کے سادے سے ایمان کو لے کر باریک بینی نظریاتی الجھاؤ اور الہیاتی عقیدے میں بدل ڈالا۔ دراصل پولس ترسیسی نے دمشق کی راہ پر اپنی تبدیلی سے اپنی زندگی کو ایک مخالف وجہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ پہلی صدی کے مسیحی سے کہیں زیادہ جو شاید مسیح خداوند کی اپنی توقع تھی۔ پولس رسول نے اپنی زندگی کی ایما پر اس بات پر زور دیا کہ ہر زندگی کا مسیح سے اپنا تعلق ہوتا ہے، کہ مذہب جو طبقاتی اصولوں پر مبنی ہوتا ہے اس کے معنی روحانی موت ہوتی ہے، اور نجات پانے کا طریقہ صرف مسیح کے فضل سے ہے، جسے وہ کسی آدمی یا عورت کو بخشتے ہیں جو اس کے لیے استدعا کرتا یا کرتی ہے، اور اس کا ہر ایک مقلد نئی مخلوق بن جاتا ہے، جیسا کہ تاریخ دان
F. ब्रोस अपनी अजीम सवाना हयात की सुर्खी में देते हैं कि पौलुस रसूल ऐसे मुमताज़ाना एतबार से ऐसे रसूल थे जो दिली तौर पर आज़ाद थे। पौलुस रसूल के इंतहाई मौसर खतूत। उनके 4 पासबानी खत उनकी आखिरी वसीयत और अहद के तौर पर लिए जाते हैं। मुक़द्दस पौलुस के मसीही कैरियर के लिए जो पहली सदी के वस्त में शायद 30 सालों पर मुहित है, जो ज़बरदस्त अंदाज में अगली 19वीं सदी पर भी असरअंदाज हुआ, उसके 2 अहम माखज़ हैं। एक तो वो किताब है जिसे रसूलों के अमाल कहा जाता है, जिसे शायद उनके दोस्त और रफ़ीक तबीब लूका ने लिखा, और दूसरा उनकी अपनी ख़त व किताबत या फिर दूसरों की तहरीरें उनके वाक़यात का तखमीना लगाती हैं। पौलुस रसूल के नए अहदनामा के 13 खतूत, जिनमें 4 अलहदा नज़र आते हैं, शख्सी अक्कासी करते हुए और एक मकाम पर तो इख्तिताम का इजहार करते हैं। पौलुस रसूल जानते थे कि खेल तकरीबन ख़त्म हो गया है। अगरचे हर जगह पीछे लौटने वालों के मुनाफिकत और गद्दारी के मसाइल थे, वो जानते थे कि वो खेल जीत गए थे, या जैसा कि उन्होंने इजाफी जिल्द में खुद नहीं बल्कि मसीह ने उनमें होकर काम किया था। ज़्यादातर मौरखीन इस बात से मुत्तफिक हैं कि 4 पासबानी खतूत मुक़द्दस लूका की शहादत से पहले सन 64 में रोम से लिखे गए थे। यानी बाज़ का ये ख्याल है कि ये कई साल पहले जब वो इफिसस की कैद में थे लिखे गए, और कुछ ये कहते हैं कि जब वो कैसरिया में अपनी पेशी का इंतज़ार कर रहे थे। 2 बातें नुमाया तौर पर जाहिर करती हैं। दूसरे 9 खतूत लोगों को इनफरादी तौर पे लिखे गए हैं, उनकी स्टाइल फ़र्क है। सफ़ा नंबर 146। बरतानवी मौर्रिख लिखते हैं कि उस वक्त तक पौलुस रसूल में तुंदी नहीं रही थी। तारीखदान जेरोम डी कोवेन पासबानी खतूत के मुतालिक बताते हैं कि वो पौलुस रसूल की आखिरी वसीयत और अहूद हैं। गालिबन पहले 4 यहूदी तीतस को लिखे गए, जो पौलुस रसूल का पहला नौमरीद था। ये वही है जो यरूशलेम की कॉन्फ्रेंस में उनके साथ थे, जहां उनको गैर यहूदी का रसूल माना गया। तीतस यूनान, मकदूनिया और एशियाई कोचिक में पौलुस रसूल के दुख सुख में कलीसिया कायम करने में उनके साथ रहे। अब इस खत में पौलुस रसूल तीतस को क्रीते के जजीरे की जिम्मेदारी सौंपते हैं और हिदायत करते हैं कि पासबान को मुकर्रर करे और खादिम का एक मयार कायम करे। ये पैगाम पासबानी खिदमत की तकदीस की इबादत में आने वाली सदियों में बढ़ाया जाए। तमाम मसीहियों के बर्ताव पर नसीहत की गई है। बुजुर्ग संजीदा मिजाज और दानिशमंद हों और मोहब्बत और हिल्म और सब्र के लिए जाने जाएं। बुजुर्ग औरतें बाइज्जत हों और गिला शिकवा की आदी ना हों और ना ही ज़्यादा मैनोशी करने वाली हों। जवान ख़वातीन बच्चों के लिए अच्छी मिसाल कायम करें और मुतहम्मिल, मेहरबान और अपने शौहरों की ताबे हों। जवान अपनी ज़िंदगी को संजीदगी से लें, सच्चाई में कायम रहें और उनकी गुफ्तगू दिखावे की ना हो। नौकर अपने मालिकों की खिदमत दयानतदारी से करें, खासकर जब मालिक मसीही हो यानी भाई हो। आखिर में तकरारी ना हो और शरीयत की बातों पर झगड़ा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। इन चारों में जिसमें ज़्यादा तजस्सुस पाया जाता है वो फिलमोन का ख़त है। इसमें एक ही बाब है जिसमें 25 आयात हैं और किताब मुक़द्दस में ये सबसे छोटी किताब है। इस ख़त में पौलुस रसूल अपने नौमुरीदों से दरख्वास्त करते हैं वो उसे अपने ग़ुलाम, जिसका नाम एनिस्मिस था, जो भागकर रोम चला गया था, जहां वो पौलुस रसूल से मिला और वहां उसने मसीह को कबूल किया और पौलुस की बहुत खिदमत की, और उसको वापस लेने के लिए कहते हैं। पौलुस रसूल उसको अपना ख़त देकर वापस भेजते हैं और फिलमोन को उसे कबूल करने को कहते हैं और अनिस्मस से जो नुकसान हुआ उसको अदा करने का वादा करते हैं। फिलमोन ने अनिस्मस से क्या सलूक किया इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन एक मौरख बयान करता है कि अगर फिलमोन ने उनकी बात ना मानी होती तो यह ख़त किताब मुक़द्दस में ना पाया जाता। फिलमोन का ख़त तारीख में एक लतीफ़ इम्कान को पेश करता है। 50 साल बाद जब अंताकिया के बिशप इग्नेशियस को रोम में कत्ल करने के लिए जा रहे थे तो वो इफिसस में रुके, तो बाद में लिखा कि वहाँ एक बिशप एनिस्मस थे जो पौलुस रसूल के खतूत को जमा कर रहे थे। वो उनसे बड़ी अच्छी तरह से मिले। क्या ये वही भगोड़े एनिस्मस थे जो उस वक्त 20 साल के थे और अब 70 के पेटे में थे, और अब
कलीसिया के सरबराह थे। इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन किसी ने तो पौलुस रसूल का ये खत महफूज किया है और यकीनन इसको किताब मुकद्दस का हिस्सा बनाया है। दूसरे दोनों पासबानी खतूत पौलुस रसूल के मौमिन तीमुथियुस से मुखातिब हैं और वो भी तीतस की तरह रसूल के साथ रहे। सफ़ा नंबर 147। तीमुथियुस पौलुस के लिए ईमान में मेरे फर्जंद की मानिब थे और वो उन्हें मेरे अपने प्यारे बेटे कहते हैं। जैसे तीतस के खतूत में वो मसीही खादिम और कलीसियाई फ़र्द के मयार के मुतालिक लिखते हैं और उसे गलत एतकाद के मुतालिक मुतनब्बे करते हैं और दुनिया के दौलतमंदों को याद दिलाते हैं कि वो ना तो दुनिया में कुछ लाए थे और ना ही कुछ ले जाएंगे। इस खत में पौलुस रसूल किसी और खत से ज़्यादा दुनिया के इख्तिताम के मुतालिक पेशनगोई करते हैं। वो लिखते हैं कि आखिरी अयाम खतरे से खाली ना होंगे। जेबी फेलिक के लेटर टू द यंग चर्चिस के तर्जुमे में आदमी खुद गर्ज, दौलत के लालची, बड़ा बोल बोलने वाले होंगे। वो घमंडी, गंदी जहनियत और अपने वालिदैन के नाफरमान होंगे। वो एहसान फरामोश, बदलिहाज, तनखू और इंसानी मोहब्बत से खाली होंगे। वो बेशरम, तोहमत लगाने वाले, बेकाबू, झगड़ालू, हर चीज़ से मुतनफ़र होंगे। वो दगाबाज, तेज़रो, जाहिल, खुदा से मोहब्बत करने के बजाय अपनी ऐशो इशरत के दिलदादा होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर सच्चाई के असर को कबूल ना करेंगे। पौलुस रसूल तीमुथियुस को नसीहत करते हैं कि वो हर तरह से अपने जहन को मतवाजन रखने में कोशिश करते हैं, अंजील की मनादी मतवातर करते रहें और वो खिदमत जो खुदा ने उन्हें बख्शी है कामिल तौर पर अंजाम देते हैं। वो आखिर में यूं कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरजूमंद हैं। मौत तेरा डंक कहाँ है? तरसुस के पौलुस हमारे आसपास ही हैं। अमरीकी तारीख, सकाफत और जोग्राफिया की मसीही बुनियाद बहुत सारे अमरीकियों के जहन से मफकूद हो गई है। मसलन अगर कोई राय शुमारी करने वाला मिनेसोटा के किसी शहरी से पूछे कि क्या कोई उनकी रियासत के दारुल खिलाफा और कलाम मुक़द्दस के पहले ग्रंथी के नाम खत में कोई ममासलत है, मैं हैरान हूं कि शायद ही कोई आदमी कह सके कि वो शख्स जिसने उस खत का नाम इसी के नाम पर उस शहर का नाम सेंट पॉल है। हकीकत तो ये है कि मगरबी दुनिया में गालिबन हर एक शहर में मुक़द्दस पौलुस के नाम से एक ना एक गिरजाघर जरूर मौजूद है। दुनिया के द टाइम एटलस में 61 मकामात ऐसे हैं जिनका नाम पौलुस रसूल के नाम पर रखा गया है, जबकि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में 772 ऐसी शाहकारों की फहरिस्त है को उसी के नाम के तहत किए गए हैं। सफ़ा नंबर 148। तिजारती कारोबार में कई तरह ये नाम इस्तेमाल किया जाता है, खा वो बराह रास्त हो या फिर किसी और शहर या इदारे के नाम से हो। मैनहट्टन टेलीफोन डायरेक्टरी में 16 नाम इसी फहरिस्त में आते हैं, जिनमें 3 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एक फिल्म सेंटर है और एक बुक स्टोर है। शिकागो में एक बिलियर्ड पार्लर है, डैलस में एक कैंसर सेंटर और एक स्टोर, सेंट पॉल्स सिकलिंक है। जो भी है, सेंट बारबरा डायरेक्टरी की फहरिस्त में एक क्लीनिंग और लॉन्ड्री, ह्यूस्टन में एक तामीरी कंपनी है, नेशविल में एक ब्यूटी पार्लर है, फिलाडेल्फिया में एक क्रेडिट यूनियन है, न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में एक फर्नीचर और अप्लायंसेस स्टोर है, न्यू अल्बनी में एक होटल है और एमरेस्ट ओहायो में एक बियर गार्डन है, शायद बिक रहा है। पॉली बियर जो ब्रेमन जर्मनी में बनाया जाता है, इसका ब्रांड नेम एक क्रूने वस्ता के राहिब खाने के नाम से है जहां असल शराब निकाली जाती है। आदमी सिर्फ सोच ही सकता है कि इन सदियों में पौलुस रसूल कैसी मशहूर शख्सियत रहे हैं। उन्होंने शायद उसका जवाब वैसे ही दिया होगा जैसे उन्होंने करंथियों की कलीसिया को दिया था, कोई मुझ पर फख्र ना करे क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा है। ख्वाह पालूस हो या अपलूस, ख्वाह पतरस या दुनिया या जिंदगी या मौत, ख्वाह हाल की चीज़ें हों या इस्तकबाल की, वो सब तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। लोग हमें खुदा का खादिम जाने और खुदा के भेदों के मुख्तार,
पहला करंथियों उसके 3 बाब की 21 और 4 की पहली आयत। पौलुस रसूल ने अपने बाद में आने वाले हजारों और लाखों मसीहियों पर जो एहसान किया है वो ना तो उनकी तालीमात और ना ही तहरीरों का नतीजा है, बल्कि ये उनके आमाल की वजह से है। हालांकि उनके खतूत को बड़ी मेहनत से फराहम किया गया था, जिनसे तकरीबन 1/3 नया अहदनामा बनता है। जिस बात से उन्हें ज्यादा खुशी हुई वो उनके वो नौमुरीद थे जो ईमान लाए। ये वो ख़वातीनो हजरात थे जो हर कौम, नस्ल और खिताए रोम की ज़ुबानें बोलने वाले थे, जो कलाम को हर मर्दो ज़न, बुजुर्ग, बच्चा, मजदूर, मुक़द्दसीन और बादशाह तक लेकर गए। वो खामोशी से मुतहर्रिक रहे, बिलाशुबा वो बढ़ते रहे, बिल्कुल ऐसे जैसे आटे में खमीर फैलता है, बिल्कुल जैसे खुदावंद यीशु ने फरमाया था। ये वो थे जिन्होंने खुदावंद यीशु के फजल को मसीहत में मुतारफ कराया, दुनिया में एक ज़बरदस्त तहरीक की बुनियाद डाली। वही पौलुस रसूल जो हर जानिब महाजाराई में मसरूफ़ थे, उनके लिए कोई ताज्जुब की बात ना थी। ये जांफशानी किसी तरह तकमील तक पहुंचेगी। सफ़ा नंबर 149। गालिबन रोम की कैद से उन्होंने तीमुथियुस को लिखा, अब मैं कुर्बान हो रहा हूँ, मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज कर लिया। दूसरा तीमुथियुस उसकी 4:7। बिलाशुबा उन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन 1600 साल बाद एक मसीही मुसन्निफ के लिए पौलुस रसूल की तस्वीर यूं खींचना बाकी था कि उनकी पहली सदी के नौमुरीद उन्हें फौरन पहचान लें। पौलुस रसूल जॉन बेनन के नावल मसीही मुसाफिर में वो बिलाशुबा सच्चाई के सिपहसालार का बेहतरीन नमूना है, और C.S. लुइस उसे ऐसी किताब कहते हैं जिसने दुनिया को शशदर कर दिया। वो सिपहसालार ऐसे थे जिनका चेहरा उम्र भर की लड़ाइयों से मजरूह हो चुका था, जिसे बालाखिर अब्दी शहर में जाने के लिए सलीबी मौत से गुजरना पड़ा। करंथियों के नाम पौलुस रसूल के खत से अखज़ करते हुए जॉन बेनन ने मिस्टर वेलिनेट का जो नक्शा खींचा वो दरअसल पौलुस रसूल का ही था। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें बताया, मैं अपने बाप के घर जा रहा हूँ। मैं अगरचे मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन उस सारी मुसीबत का मुझे कोई मलाल नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना था। जो शख्स मेरे इस सफ़र में कामयाब होगा, मैं उसे अपनी तलवार दूंगा और अपना हौसला और महारत जो उसे पाने की अहलियत रखेगा। मैं अपने जख्मों के निशान साथ लिए जाऊंगा, ताकि वो मेरी गवाही दें कि मैंने ये लड़ाई उसके लिए लड़ी है जो मेरा अजर होगा। जब उसके इंतकाल का दिन आया तो बहुत सारे उसके साथ दरिया के किनारे तक आए, और जब उन्होंने पानी में कदम रखा तो उन्होंने कहा, ऐ मौत, तेरा डंक कहाँ रहा? और जब वो गहराई में उतरे तो उन्होंने कहा, ऐ कब्र, तेरी फतह कहाँ गई? और यूं वो गुजर गए, और दूसरी जानिब बहुत सारे नरसिंगे बजाए गए।